हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हम 3 लोग राष्ट्रपति के पास गए हैं, बट हम करोड़ों सिग्नेचर्स कैमरा नीचे करो भाई। हम किसान की आवाज राष्ट्रपति जी को तक ले गए। क्या कर रहा है? सर्दी का मौसम है और पूरा देश देख रहा है कि किसान दुख में है, दर्द में है और मर भी रहे हैं। प्रधानमंत्री को सुनना ही पड़ेगा। और मैं एडवांस में चीज बोल देता हूं। मैंने कोरोना के बारे में बोला था कि नुकसान होने जा रहा है। उस समय किसी ने नहीं बात सुनी और आज मैं फिर से बोल रहा हूं, किसान के सामने, मजदूर के सामने कोई भी शक्ति नहीं खड़ी हो सकती। अगर प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस नहीं लिए, सिर्फ बीजेपी को नहीं, सिर्फ आरएसएस को नहीं, देश को नुकसान होने जा रहा है। बार-बार बीजेपी की तरफ कहा जा रहा है कि जो किसान बैठे हैं, ये नक्सल हैं, खालिस्तानी हैं, विपक्ष ने बरगला रहा है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। आराम से आ जाओ। देखिए, आ जाए यार। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं, वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भगवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी। मतलब जो भी नरेंद्र मोदी जी से सत्ता लेने की कोशिश करेगा वो आतंकवादी। और नरेंद्र मोदी किसके लिए काम कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। उनके 2-3 आसपास के क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं जिनको वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान पकड़ा है। ये रियलिटी। Look, the point is, it's a very simple thing. There are millions of people who live off our agricultural system. Large percentage of our people live off our agricultural system. These are laborers, they are farmers, they are small traders. These are these people. And they are the backbone of the country. Now, we understand that agriculture has to be reformed. What we are saying is that if you destroy this system, these millions of people will have nothing to do. They will not be able to feed themselves. And you will create massive destruction, massive pain in the country. Why is the Prime Minister doing this? It is a very simple calculation. The Prime Minister is doing this because he wants to help 2 or 3 business people. He does not care what happens to these people. He will construct whatever narrative he has to construct to make sure that the wealth transfer that is taking place to 3 or 4 people continues. He will call people terrorists. He will call people anti-nationals. He will call people criminals. He will do whatever he has to do to transfer the wealth from these people, the backbone of this country, to those people. 3 or 4 of them, 5 of them. That's the crux. And we are fighting this. We are saying that in India, where you have destroyed the agricultural system, will not function. Just like I said, take Corona seriously. Corona is going to kill people in massive numbers if you do not act. At that time they said, scaremongering. Now they're not saying scaremongering. When I suggested to the Prime Minister
that do not do this in a centralized way. Give power to the chief ministers. He didn't do it. He caused thousands and thousands of people to die because he didn't do it. And then afterwards, after I said it in the press conference, he did it. So the point is, you have an incompetent man who is controlled by certain other people. This is what India has to understand. This is what all youngsters have to understand. You have an incompetent man who doesn't understand anything, running a system on the behalf of 3 or 4 other people who understand everything. And their aim is to take huge amounts of money from the poor people of India and put it in their pocket. And that is what we are fighting. And frankly, it doesn't matter what you think right now, because all of you will face it. There's not going to be a single person in this country who's not going to face it. If you're a farmer, you will face it. You're a small businessman, you will face it. You're a journalist, you will face it. This is an assault on the idea of India. That is why we're standing here. That is why I've gone to the president. That is why we signed these forms. You posted a tweet about Wydad yesterday about a family which was struggling while doing their farming. But there are several more instances like this. But the BJP is saying that this is just Punjab farmers who are protesting here at the delegate. No other farmer in the country has a problem with that. That's just not true. That is just not true. We are not allowed to go out. We are not allowed to go out of the ICC office. The police stops us from going out. Why don't you let us go out? Why don't you let me go and tour in the states? See what happens. Every single farmer of this country, every single labor of this country stand up. But आप पुलिस लगाते हो, हाथरस जाते हो, अरेस्ट करते हो, तो AIC से हमारे MP को बाहर नहीं निकलने देते हो, और फिर कहते हो कि भैया मतलब सब कुछ ठीक है. और Prime Minister needs to realize that there is a limit to this. आपने थोड़ा सा करना है, आपने 2-3 लोगों की मदद करनी है, थोड़ा सा करना है, आप कर सकते हो. बट जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हिंदुस्तान के किसी भी युवा को रोजगार नहीं मिलेगा. सारे छोटे बिजनेस, सारे मिडिल साइज बिजनेस खत्म हो जाएंगे. और दूसरी बात याद रखिए, जिस चीज को आप सब भूल गए हैं, चाइना बॉर्डर पे बैठा है. चाइना ने हिंदुस्तान की हजारों किलोमीटर जमीन छीन ली है. प्रधानमंत्री उनके बारे में क्यों नहीं कहते? आगे चली है ना, उसके बारे में चुप क्यों है? तो मेरा कहना है कि पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है. एक तरफ आप अपने सिस्टम को तोड़ रहे हो, आप अपने लोगों को लड़ा रहे हो, आप अपने किसान को मार रहे हो, मजदूर को मार रहे हो, और दूसरी तरफ बाहर से फोर्सेस देख रही हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को कमजोर कर रहा है और हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बनने जा रही है. मैं देश को बता रहा हूं, मैं वार्निंग दे रहा हूं कि आप देखिए क्या हो रहा है. और मैं आपको भी कह रहा हूं, प्रेस वालों को भी कह रहा हूं, मैं समझता हूं कि आपको सैलरी मिलती है और आपके लिए बहुत मुश्किल है. मैं समझता हूं बात, इसलिए आप नहीं कह पाते हो जो आपको कहना है. जी बिल्कुल. मगर आपके देश को, हमारे देश को बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है. बहुत डेंजरस रास्ते पर ये देश चल रहा है. ये मैंने कहना. कांग्रेस के नेताओं को डिटेन कर लिया गया है. आप लोग मार्च लेके यहाँ पर आ रहे थे, अभी जो है कांग्रेस तमाम एमपी को वो तो तरीका है इनका, तरीका है डिटेन करना, मारना, पीटना, ये इनका तरीका है. बट हम नहीं करते नहीं. ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी? या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है. डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं. थैंक यू. गुलाम नबी कुछ आप सवाल ये है, इन्वेस्टमेंट कौन करेगा और इन्वेस्टमेंट का फायदा किसको मिलेगा? सवाल ये है. नहीं सुनिए, सवाल ये है कि
हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सिस्टम में कौन इन्वेस्ट करेगा और कौन पैसा बनाएगा। हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सिस्टम में आज तक किसान ने इन्वेस्टमेंट किया है, मजदूर ने इन्वेस्टमेंट किया है। ये जो जवान हमारी सेना बॉर्डर पर खड़े हैं, इनके माता पिताओं ने किया इन्वेस्टमेंट। ये करते हैं और रिटर्न किसको मिलता है? रिटर्न 2-3 उनके उद्योगपति मित्रों को मिलता है। ये पूरा देश जानता है, पूरा देश इस बात को समझता है कि इन्वेस्टमेंट हम करते हैं। बहुत दूर खड़ा है, लॉक कर दूं? आपके माता पिता क्या करते हैं? गुलाम नबी साहब बहुत दूर खड़े हैं। आप एग्रीकल्चर फार्मर थी, अब आप जर्नलिस्ट है ना, तो आप जानते हो कि आपके फादर ने इन्वेस्टमेंट किया या नहीं? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप देश की महिला हैं, ठीक है, ठीक है, आपके पिता ने इन्वेस्टमेंट किया ना? मदर फार्मर है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ना? किसके लिए इन्वेस्टमेंट किया? क्या इन 2-3 लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट किया, या आपके परिवार के लिए किया, आपके एजुकेशन के लिए किया, आपके स्वास्थ्य के लिए किया, आपके स्वास्थ्य के लिए किया, आपके एजुकेशन के लिए किया? मगर ये जो 2-3 बिजनेसमैन है उनके लिए तो नहीं किया ना। तो सवाल यही है, इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? आपके माता पिता ने किया, करोड़ों किसानों ने किया, और रिटर्न किसको मिल रहा है? काउंटर करने की जरूरत, काउंटर आप क्या बात कर रही है? काउंटर करने आप क्या बात कर रही है? काउंटर करने के मतलब आपको ये नहीं मालूम कि अरे भाई आपको क्या आप क्या हिंदुस्तान के किसान को बेवकूफ समझती हैं? तो फिर अगर आपको समझे तो उसको कैसे समझ नहीं है? अगर ये यहाँ पे लाखों लोग बैठे, हजारों लोग जो बैठे हैं दिल्ली के बाहर, क्या ये सुनिए, ये जो लाखों लोग आए, क्या ये मिठाई खाने आए? क्या इनको समझ नहीं क्या हो रहा है? इनको समझ नहीं क्या हो रहा है? इनको मालूम है, क्लियरली मालूम है, इनको मालूम है नरेंद्र मोदी चोरी कर रहा है। इनको मालूम है कि ये दिन भर इन्वेस्टमेंट करते हैं, 24 घंटा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उधर इन्वेस्टमेंट कहीं और जाता है, रिटर्न कहीं और जाता है। थैंक यू। ले भाई, तेरा काम हो गया, बैठ रहे हैं। तो आप सुन रहे थे राहुल गांधी को, जिन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कई बड़ी बातें कही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। उन्होंने कहा है सबसे बड़ी बात कि हम किसानों के साथ हैं, सरकार किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है, नए कानून को सरकार को हटाना ही पड़ेगा, कांग्रेस किसानों के साथ है। उन्होंने कहा कि पीएम के खिलाफ कोई बोल तक नहीं सकता, कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। राहुल गांधी ने ये तक कहा कि इस देश से डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ये कृषि कानून लेकर आई है, जिससे यहाँ के छोटे छोटे बिजनेसमैन को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के लेबर्स को परेशानी होगी। कुछ उद्योगपतियों के फायदे के लिए सरकार काम कर रही है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मीडिया से मुखातिब होते हुए कृषि कानूनों के खिलाफ राहुल गांधी राष्ट्रपति भवन पहुंचे, वहां पर एक ज्ञापन सौंपा है उन्होंने राष्ट्रपति को। इस ज्ञापन में राहुल गांधी ने 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर के साथ ये मांग की है कि इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। हमारे साथ एक बार फिर से कांग्रेस प्रवक्ता वीरेंद्र वशिष्ठ जुड़ चुके हैं। अभी हम राहुल गांधी को सुन रहे थे। वीरेंद्र जी, आपने भी सुना होगा, तो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते आप अपने आप को कितना ताकतवर महसूस करते हैं जब राहुल गांधी इस तरीके से हमला बोल रहे थे सरकार के खिलाफ? मैम, आप ये मत कहो कि हमला, हम ये कह रहे हैं कि जो गूंगी बहरी सरकार है, हम उसको जगाना चाहते हैं कि जाओ देखो कि कैसे देश का किसान अपने हकों और हकूक की लड़ाई के लिए सड़कों पर बैठा हुआ है। इनके पास हर जगह जाने का टाइम है, पर अपने किसान से मिलने का टाइम नहीं है। इनको क्या जल्दी है इन फार्म एक्ट की? फार्म कानून बना के इन्होंने जो किसानों पर कुठाराघात किया है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इस देश के नागरिक हैं, हम देश के हर गरीब जनता, हम महात्मा गांधी के सोच के लोग हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि कोई भी कानून बनाए तो आखिरी व्यक्ति को उसका फायदा। वीरेंद्र जी, बीजेपी तो ये कहकर अपना पल्ला झाड़ रही है कि साहब ये कानून कोई आज का कानून नहीं है, ये पूरी प्लानिंग तो कांग्रेस पार्टी की थी, कांग्रेस पार्टी ने इस कानून को प्लान किया, जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया है। देखिए मैडम, इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये हमारी बात कह के अपनी झूठ चलाते हैं।
हमारी जीएसटी और इनकी जीएसटी में दिन रात का फर्क है। ये हर चीज झूठ के आधार पर करना चाहते हैं जी। ये कौन चाहते थे, हम वहां मंडियों को बढ़ाना चाहते थे, हम दोनों लोगों को चाहते थे कि वो ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े। ये लोग तो दिक्कत ही पता नहीं क्या है, इनको झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं, और चौकीदारा कर रहे हैं व्यापारियों का। इसके अलावा इनके और कोई काम नहीं है। ये व्यापारियों का चौकीदारा छोड़कर गरीबों का साथ दें। हिंदुस्तान का किसान मजदूर आज दिल्ली के चारों तरफ आज जो ठंड है, उस ठंड में ट्रोलियों के नीचे जिस प्रकार वो सो रहा है, आप कल्पना करिए। रोज किसान अपनी जान निछावर कर रहा है, किसान अपनी खेती को बचाने के लिए। पर ये वीरेंद्र जी कहते कहते राहुल गांधी एक बड़ी दिलचस्प बात कह गए, उस पर आपकी टिप्पणी में जरूर लेना चाहूंगी। वो कह गए कि यहाँ पर सरकार ने कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी है। वो उन्होंने कहा कि मैं सरकार को चेता रहा हूँ, इन्होंने हमको खुद चलकर अपॉर्चुनिटी दी है आने वाले वक्त के लिए। देखो मैडम, मैंने तो ये सुना नहीं है, और जो उन्होंने कहा सरकार, तो ये अपॉर्चुनिटी शब्द आप आज भी आपका, देखो मेरा दुर्भाग्य है, आप उन्होंने जो कहा है वो ठीक कहा है। और दूसरा, आज आप सबको केवल किसानों की बात करनी चाहिए, केवल जो किसान के हालात है। आप तो इतना प्यारा चैनल, आपकी रोज आके देखिए वहाँ पर क्या हालात हो रहे हैं। नहीं बिल्कुल सर, हमारी तो 24 घंटे वहाँ पर रिपोर्टिंग जारी है सिंघू बॉर्डर से, हम देख पा रहे हैं। हमारे साथ हुकुम सिंह भाटी जुड़े हैं, आप भी बने रहिए, जरा उनसे जवाब ले लेते हैं आपकी इन बातों का। हुकुम सिंह भाटी जी बीजेपी से हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। राहुल गांधी अभी प्रधानमंत्री से लेकर कृषि कानूनों पर बात करते करते एक बड़ी महत्वपूर्ण और दिलचस्प बात कह गए हैं। कृषि कानून को लेकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा, साथ ही कह गए कि सरकार ऐसे काम करके हमारे लिए अपॉर्चुनिटी खड़ी कर रही है। चलिए देखिए, ये उनको ऐसा लगता है तो ये उनका अपना सोचना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी और हरियाणा प्रदेश में किसानों के हित में काम कर रही है, काम किया है। जो ये कानून आया है ये भी किसान हितैषी है। वो एक अलग बात है कि चंद लोगों को, जिनको कांग्रेस में और दूसरी जो विपक्षी पार्टियां उन्होंने उकसाया हुआ है, और उनको जानबूझ करके जो है इस तरह की बातें जो है केवल और केवल उसको निरस्त करने पर अड़े हैं। ये सब बातें एक प्रैक्टिकल नहीं है। इस तरह तो देश के संविधान को भी झुठला देंगे ये लोग। तो दूसरी बात, आज जैसे राष्ट्रपति जी ने 3 लोगों को परमिशन दी मिलने के लिए, और पूरा मार्च कर रहे हैं, धारा 144 को तोड़ रहे हैं। इसलिए कानून तोड़ना तो इनके स्वभाव में है। बीजेपी की रैलियां निकल सकती हैं, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस का मार्च नहीं निकल सकता, ये क्या बात हुई सर? नहीं, रैलियां, देखिए रैली कहाँ निकल रही है? रैली ये लोग। हुकुम सिंह जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। बॉर्डर पर तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको टेंट लगा के दिए हैं, सरकार ने कभी इनको मना नहीं किया है। लेकिन ये इस तरह से धारा 144 को तोड़ना, जबरदस्ती जो है वो करना, ये ठीक नहीं है। नहीं, मेरे सवाल का जवाब सर मुझे नहीं मिला। वेस्ट बंगाल में अमित शाह जाकर इतनी भव्य बड़ी सी रैली निकाल सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी मार्च नहीं कर सकते राष्ट्रपति भवन तक। देखिए, आप पश्चिम बंगाल से मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर तो चुनाव है, चुनाव की प्रक्रिया वहां शुरू हो चुकी है। राजनीतिक पार्टियां रैली कर रही हैं, खुद ममता बनर्जी ने रैली की है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने किसी कानून की अवहेलना नहीं की है। आप उससे दिल्ली का मुकाबला नहीं कर सकते। दिल्ली में जो भी वीआईपी इलाका है उसमें धारा 144 लगाई हुई है। और दूसरा, जब एक संविधान में किसी चीज के लिए एक मौलिक अधिकार है, आप उसका हनन नहीं कर सकते। आप उसका हनन कर रहे हो, भीड़ लेके जा रहे हो। 3 लोग जाइए ना, अधिकार तो हमारा है मार्च निकालने का, हम विरोध भी प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, सरकार हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। नहीं, ये तो देखिए निराधार जो एलिगेशन लगाया है, सरकार कभी किसी की आवाज को नहीं दबा रही। सरकार ने तो एक किसानों के हित में काम किया, और बहुत सारे किसान जो संगठन है उन्होंने उसके हक में अपना समर्थन पत्र भी दिया है, और लोगों को भी वो समझा रहे हैं। ये तो कुछ लोग गुमराह जो किए गए हैं वो लोग हैं। चलिए आपके इस जवाब पर, आपकी इस सेंटेंस पर मैं जरूर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। वीरेंद्र वशिष्ठ लगातार हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, हुकुम सिंह जी कह रहे हैं कि बंगाल की बात अलग है, दिल्ली की बात अलग है। आप जरा क्या बात वो अलग है, जरा आप समझाएंगे मुझे? जहाँ चुनाव होता है वहाँ इनके ये हर रूल तोड़ देते हैं। जहाँ चुनाव ना हो
यहाँ क्योंकि किसान अपनी बात उठाना चाहते हैं, यहाँ इनके कानून आ गए। भाटी जी वकील भी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ धारा 144 कब लगाई, जब ऑलरेडी कौन लोग मिलने आ रहे थे मार्च में? ये क्यों आप देश की डेमोक्रेसी का मजाक बना रहे हो, रोज संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो? पूरा देश देख रहा है किस प्रकार से आपने संविधान और डेमोक्रेसी को तार तार कर दिया है। आज किसानों से मिलने आओ ना, क्या बात है? आप टीवी पे एक तरफा मन की बात करते हो, किसान बैठा हुआ आपके साथ बात करेगा, क्या दिक्कत है? अपने किसान को समझाना है, कोई बाहर के लोगों को नहीं समझाना है। अपने किसान को नहीं समझा पा रहे हो आप, हद है, ये दुर्भाग्य है। और इस प्रकार की करके डेली कोई ना कोई वहाँ किसान अपनी जान निछावर कर रहा है, और पर इतनी संवेदनहीन सरकार। चलिए वीरेंद्र जी, पहली बार बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, और हुकुम सिंह भाटिया हमारे साथ बीजेपी से जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक गतिविधियां आज नजर आ रही हैं, घटनाक्रम जिस तरीके का है, आज दिल्ली के अंदर प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है, चौतरफा सरकार घिरती हुई नजर आ रही है कृषि कानूनों को लेकर, लेकिन अभी तक कानून की वापसी पर सरकार की तरफ से कोई भी सिग्नल नहीं दिया गया है। तो ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि क्या इसी तरीके से आंदोलन चलता रहेगा? आखिर कब तक चलेगा? इसकी जवाबदेही किसकी है? सबसे बड़ा सवाल यही है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही।